Good morning, students. So the topic that we are going to learn today is number system, that is of class 9th, chapter number 1. So in this chapter, we will deal with following things: natural numbers, and the second topic is whole numbers, third integers, and then rational numbers, and after this we have representation of rational numbers on the number line. Representation of rational numbers on the number line. Then we have inserting of rational numbers between two given numbers, rational numbers. Rational numbers. And then we have decimal representation of rational numbers. Decimal representation. And after this we have irrational numbers. Then representation of irrational numbers on the number line. On the number line. And the last topic that we will deal with is laws of exponent for real number. Exponent for real numbers. So now we start with the natural number first. So what is natural numbers? So natural numbers is simply the collection of counting numbers. And what are counting numbers? Counting numbers starts from 1 to infinity. So we can write it at natural number is denoted by the symbol n. So we can write n is equal to 1, 2, 3 and so on till infinity. This is the symbol of infinity. Then we have whole numbers. It is represented by w. So whole number is simply the collection of काउंटिंग नंबर्स प्लस जीरो. इफ वी ऐड जीरो इन नेचुरल नंबर, अगर हम जीरो को ऐड कर दें नेचुरल नंबर में तो होल नंबर बन जाता है. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो प्लस नेचुरल नंबर, और वी कैन राइट जीरो, 1, 2, 3 and so on till infinity. So these are whole numbers. Now we have the next is integers. Okay, so integers is denoted by z. इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं. एंड इंटीजर z इज इक्वल टू निगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स.
इसको मैं आपको नंबर लाइन बना के दिखाता हूँ, जिससे सपोज कीजिए ये एक नंबर लाइन है एंड हेयर इट इज़ 0 and here is it is positive integers this side and here negative integers. Okay, as we all know राइट साइड पे पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट पे नेगेटिव्स होते हैं, तो इधर 1 2 3 एंड सो ऑन. Similarly we have -1 -2 and -3 and so on. सो हम लोग इनको इधर वालों को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं जितने भी हों, ठीक. इधर वालों को हम लोग निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं. ओके, इसके बाद एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, नोट में लिख देता हूँ यहाँ पे. 0 that is 0 is neither positive nor negative. नॉन निगेटिव. ओके, 0 ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर्स. ये तो हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये हम लोग बेसिक क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, चलो क्लास 9 8 में 7 में 6 में. अब लेकिन अब आता है रेशनल नंबर्स जो हम अब पढ़ने वाले हैं. सो नाउ रेशनल numbers. So first of all, rational number is denoted by the symbol q, and the definition of rational number is numbers represented in the form of p upon q, where p and q are integers and q should not be equal to 0. मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे हों और p और q इंटीजर्स होने चाहिए, और q जो है, ये जो q है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग जैसे एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज कर लीजिए कोई भी एग्जांपल हमने ले लिया, 7/8. तो देखिए ये p हो गया मीन्स न्यूमरेटर, इसे न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ये q है. सो p अपन q की फॉर्म में हो गया, और q जो है यहाँ पे 0 के बराबर भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं. ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया. ठीक है, so we can write, so therefore we can write rational numbers include natural numbers, we can write in short form, that is n, whole numbers w, integers that is z, and fractions. Okay, now we have one more topic, that is equivalent rational numbers. इक्विवेलेंट, एज देखिए जो वर्ड लिखा हुआ इक्विवेलेंट, इसका मतलब होता है इक्वल, बराबर. ठीक है, सिंपली इस वर्ड से ही हमको समझ में आ रहा है. तो ऐसे रेशनल नंबर्स जो एक दूसरे के बराबर हो, जैसे कि एग्जांपल में हम जैसे लिखते हैं, सपोज हमें एक रेशनल नंबर दे दिया 1/2, कोई कहे हमसे इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कोई बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिमिलर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे सपोज हम इसे मल्टीप्लाई कर दें 2/2 से, तो एक रेशनल हमारे पास नया रेशनल नंबर बन के आएगा 2/4. सो 1/2 एंड 2/4 ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों ही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे. ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे. सो ऐसे ही अगर हमको सपोज करो, अगर कोई कह दे कि आप बताइए, सपोज कोई लिख दे 2/3 और 5/4 ये इक्विवेलेंट है या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं. जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी पता कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, 5 × 3 दैट इज़ 15 एंड 2 × 4 दैट इज़ 8.
इस तरीके से चेक कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका हम लोग एग्ज़ाम्स में जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं बोर्ड के, वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो वहाँ हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम करते हैं। कैसे सेम होगा, हम लोग ये जो 3 और 4 है डिनोमिनेटर में, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना आपने सीखा होगा बचपन में, 3 4 12, यहाँ 12 आएगा, इसमें भी 12 आ गया। अब देखिए 3 4 ज़ा 12, ऐसे ही यहाँ भी 4 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, ऐसे यहाँ पे देखिए 4 3 ज़ा 12 एंड 5 3 ज़ा 15। सो 8/12 आ गया, ये 15/12 आ गया। बोथ आर नॉट इक्वल, सो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं हुए। ठीक, इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चेक करते हैं। ये वाला तरीका जो है आप एग्ज़ाम पर्पज़ से है, इसको आप एग्ज़ाम्स में अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कहीं आप कर रहे हैं तो आपको इस तरीके को अप्लाई कर लेना है आसानी से। ठीक है, अगर आप सपोज 11th का टेस्ट कहीं दे रहे हैं कंपटीशन, तो वहाँ से अप्लाई करेंगे। ओके, इसके बाद हम चलते हैं एक, इसको देखो मैं इन सभी को एक कंक्लूड कर देता हूँ। देखिए कंक्लूजन, यहाँ पे हम लोग इसका निचोड़ लिख लेते हैं, निचोड़। ओके, सो निचोड़ ये हुआ कि सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े, दैट इज़ 1 से जो है 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आता है फिर होल नंबर्स, जिसमें नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। तो हमको इस तरीके से इस फॉर्म में बना सकते हैं इसको, 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, होल नंबर के बाद फिर आएगा, ठीक है, इसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स इंक्लूड नेगेटिव नंबर, सपोज यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी से मान लीजिए ये चलिए -1 0 एंड +1 2 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीजर्स। एंड देन वी हैव रेशनल नंबर दैट इज नोटेड बाय q। सो q जैसे सपोज कर लेते हैं, कोई भी एग्जांपल हम लिख लेते हैं 2/3 -2/3 4/3 एंड सो ऑन। तो ये सब जो है रेशनल नंबर्स होते हैं। सो इस डायग्राम से हम इजीली समझ सकते हैं इन चारों को, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जो हमने स्टार्टिंग में आपको टॉपिक्स बताए थे उसमें हमने लिखा था ये वाला टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सो इसको देखिए, रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे नोट करें। सपोज करते हैं, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, कोई एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जैसे कि जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो सपोज 2/3 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो कैसे करेंगे, हम लोग पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, हमने जैसे सपोज ये नंबर लाइन बना ली। देखिए ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो नेगेटिव में तो सोचना नहीं है, पॉजिटिव में जाना है। अब देखिए 0, ये 2/3 जो है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो इसका मतलब है ये 1 से छोटा होगा फ्रैक्शन। ठीक है, तो 0 1 के बीच में आएगा, सबसे पहले बात ही समझ में आ गई। इसके बाद ये देखिए नीचे डिनोमिनेटर कितना है, 3, मीन्स इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मतलब ये होगा कि 2/3 है, 3 दो 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 दूसरा हिस्सा 3 का। ठीक है, तो हम लोग 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे इक्वली। ठीक है, तो 1 2 3 3 पार्ट्स हो गए। इसके बाद ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा 1/3, दिस वन इज़ 2/3, ये वाला हिस्सा जो है ये वाला। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहते हैं 2/3 होगा, जो हमें चाहिए था। इसके बाद इसको अगर हम लिखें तो हम इसको 3/3 लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऐसे करके हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। दूसरा हम लोग देखते हैं, एक हमें सपोज यहाँ पे दे दिया जाए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे 8/5 दे दिया सपोज। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी हम नंबर बाय लाइन बनाएंगे। ये अभी ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर लाइन की तरफ फिर फोकस होगा हमारा। इसको सबसे पहले हम लोग मिक्स्ड फॉर्म में लिख लीजिए, 5 1 5 3 8 5 सॉरी 5 1 5 5 3 8 1 5। ओके, सो 0 1, देखिए ये 1 से बड़ा है, 1 3/5, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा। सो इसके बाद हम लोग इसके 5 पार्ट्स कर लेंगे, 4 एंड 5। ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स किए जाते हैं, एंड देन 1 2 3 4
यस 1 2 3 दिस वन, ये वाला अगर हम देखें, ये जो लाइन है ये दिस वन, तो इसको हम देख सकते हैं ये 1 3/5 के बराबर है। ओके ना, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने, दैट इज इंसर्टिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। ये हमारा एक टॉपिक था अगला नेक्स्ट। इंसर्टिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। टू गिवन रेशनल नंबर्स। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है, हमें सपोज, जैसे मैं एग्जांपल लेके इसे समझाता हूँ आपको। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, सपोज 3 और 4, ये दो रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में हमें एक रेशनल नंबर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, इसमें इन दोनों का सम कीजिए, 3 + 4 / 2, दैट इज 7/2। 7/2 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो इन दोनों के बीच में आएगा। अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो 2 3 × 7 3.5 इसकी वैल्यू आएगी। तो ये आप देख सकते हैं 3 से ग्रेटर होगा 7/2 एंड लेस देन होगा 4। ओके, सो ये इसके बीच में आएगा। तो ऐसे करके हम रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद आप सपोज कीजिए, अगर हमें लिखना है, सपोज फ्रैक्शन वाला आ जाए अगर फॉर्म में, जैसे ये तो एग्जांपल 1 हो गया, हमें लिखना है दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, बिटवीन -2/3 एंड -1/4। सपोज हमें इसके बीच में लिखना है रेशनल नंबर, तो कैसे लिखेंगे? तो सिमिलरली हम लोग मैंने अभी आपको एक तरीका पीछे बताया था इसको इक्वल करने देखने का, तो वही तरीका यहाँ लगाना है। फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, 3 4 12, एलसीएम होगा 12। ओके, अब देखिए इसे कितने से मल्टीप्लाई किया है, 4 3 12, ऐसे यहाँ पे 1 × 3, -1 × 3 is -3, एंड सिमिलरली 3 4 12 -2, 2 4 just give me a second, yes that is -8। इसे हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, इसे क्योंकि इसे 4 से किया था तो ऊपर भी 4 से किया, तो -8/12 आ गया, -3/12। अब आप देख सकते हैं -8/12, इसके बाद यहाँ आता है -7/12, ऐसे करते करते सिमिलरली करते करते यहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे -2/12 तक, -3/12 एंड देन -2/12। सो आप ये देख सकते हैं, ये जो बीच के नंबर्स हैं, ये नंबर्स इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में आ रहे हैं जो हमको चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड -1/4 आर -7/12, -6/12, ऐसे करते करते आप लिखते लिखते यहाँ पे -3/12 तक जाएंगे। ठीक है, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये नंबर और ये नंबर ये तो हमें ऑलरेडी गिवन थे, हमने इसको ही लिखा है कन्वर्ट करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, दैट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स कैसे करें? ठीक है, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक एग्जांपल हमने ले लिया, एक्सप्रेस 7/8 इनटू डेसिमल फॉर्म। ओके, हमें डेसिमल फॉर्म में 7/8 को एक्सप्रेस करना है, तो कैसे किया जाए? सो सिंपली हम लोग जो डिवीज़न बचपन से सीखते आए हैं वैसे ही इसको डिवाइड करना होता है। यहाँ पर आप 7 को लिख दीजिए, यहाँ पर 8 को लिख दीजिए। ये लोग आप लोग जानते होंगे, ये 8 जो है डिवाइज़र है, यहाँ पर ये डिविडेंड है 7, ऐसे ही इधर जो आएगा वो कोशेंट होगा, नीचे जो बचता है दैट इज रिमाइंडर। ठीक है, तो 7 यहाँ पर आप
एक डेसिमल लगाइए, फिर आप इसके बाद डेसिमल लगाने का मतलब होता है आप कितने भी जीरो ऐड कर सकते हैं। सपोज हमने 3 जीरोज यहाँ ऐड कर दिए, फिर इसके बाद आप टेबल पेज पढ़िए, 8 8 से 64, यहाँ 6 बचे 60, 8 7 से 56, we have 4 remaining, then we have one more zero, 8 5 से 40. So as we can see, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ रिमाइंडर तो कुछ बच नहीं रहा है, जीरो जीरो बच गया है, ठीक है। सो यहीं तक डिवाइड होगा। सो वी कैन राइट 7/8 इज इक्वल टू 0.875। ये हो गया डेसिमल फॉर्म फ्रैक्शन की, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जैसे 2 चीज़ें हैं, एक होता है, ये समझ लीजिएगा अच्छे से, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड द सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसी को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को ही नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, ठीक है। चाहो तो आप पब्लिक करके लिख लो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ओके, सो हम लोग यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको ये बता दूँ सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड, मतलब एंड खत्म हो जाए जहाँ पे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग जो एंड ना हो। सो अगर हम इस वाले डेसिमल को देखें, ये जो मैंने लिखा है, तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें पॉइंट डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक वैल्यू हुई, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वैल्यू एंड हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो डेसिमल हुआ, ये हमारा टर्मिनेटिंग का पार्ट है, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग है, ओके। अगर यही वैल्यू सपोज कंटिन्यू रहती, सपोज हम लोग लिखते हैं अगर 2/3, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.66 एंड सो ऑन। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.6 बार। ये जो बार पॉइंट लाइन बनाया, ऊपर बार बनाया हमने, इसका मतलब ये है कि 6 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग। तो और इस बार को हम लोग, मैं ये बता दूँ आपको क्या बोलते हैं इसको, एक वर्ड होता है स्पेशली इसके लिए होता है, इसे बोलते हैं विनकलम, CULUM, विनकलम, ओके। सो दिस इज द वर्ड फॉर दिस बार लाइन, ओके। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। सो अब देखिए, मैं इसके आगे चलता हूँ, आपको और कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। लेट मी सी द क्वेश्चंस। जब तक आप ये नोट कर लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। सी, ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अब देखिए, क्वेश्चन हमारा है, हमसे कह रहा है, एग्जाम्पल मैं लिख के कर देता हूँ, विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन find out the given fraction is terminating, और मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। हमें ये पता करना है, यहाँ पे सपोज एक क्वेश्चन यहाँ ये लिखा हुआ है 3/20, हमें ये पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, सपोज दूसरा ले लिया हमने 17/18, ओके। सो कैसे चेक हम इसको पता करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कंसीडर द फर्स्ट वन फर्स्ट, दैट इज 3/20। इसमें हम लोग देख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर जो है वो 20 है। सबसे पहले 20 के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर निकालना आपको आता होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इस तरीके से, जैसे 20 ले लिया, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, फिर 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5, ओके। तो 2 ये लिखा जाएगा 2 × 2 × 5, ओके। सो इट कैन बी रिटन एज 2² × 5 की पावर 1, ओके। सो जब डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर, इसके ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, अलग से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्पेशल है। डिनोमिनेटर should be expressed in the form of 2 raised to the power m into 2 raised to the power, oh sorry, 2 raised to the power m into 5 raised to the power n. Geometry should be expressed in the form of 2 raised to the power n for किसके लिए? टर्मिनेटिंग के लिए। ओके, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल चाहिए आपको उसमें पता लगाना है तो 2 रेज़ टू दी पावर 5 इंटू 5 रेज़ टू दी पावर n, ये 5 है, एक बार दोबारा लिख देता हूँ उसे। ओके, 5 रेज़ टू दी पावर n इस फॉर्म में होना चाहिए। अब हम इस वाले डिनोमिनेटर को आप देख सकते हैं, ये 2 रेज़ टू दी पावर n, यहाँ पर अगर हम देखें m जो है वो 2 है, n 1 है। ओके, सो ये इस फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ओके, नेक्स्ट वन इज 17/18। अब मैं डायरेक्ट देखो करता हूँ, डिनोमिनेटर हो गया 18, अब 18 का यहाँ पे आप वो निकाल लीजिए पहले तो फैक्टर्स, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो एज वी कैन सी इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3। सो इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यहाँ 5 नहीं है, देखो यहाँ 3 है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये एग्जांपल्स थे इसको समझने के लिए। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पता करने का। ठीक है, बाकी आप जो है अगर कहा जाए क्वेश्चन में सॉल्व करने को एग्जाम में, तो आप जो है पूरा ऐसे डिवाइड करेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको देखो, मैं प्रीवियस क्वेश्चन पे चलता हूँ, ये जैसे डिवाइड करके दिखाया ऐसे डिवाइड करेंगे एंड देन यू विल चेक। ओके ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, मैंने स्टार्टिंग में टॉपिक्स लिखे हैं, एक बार आप टॉपिक्स पे चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ टॉपिक्स कहाँ गए आपके। यस, सो हमने यहाँ पर कवर कर लिया, नेचुरल नंबर्स हो गया, होल नंबर्स कवर कर लिया, इंटीजर्स कवर कर लिया है, रेशनल नंबर मैंने आपको बता दिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बता दिया कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद इंसर्टिंग ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स, ये भी बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, हमें इसके बाद जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, अब हमें बचे हुए टॉपिक्स देखने हैं। सो उससे पहले एक छोटी सा टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ, दैट इज कन्वर्जन ऑफ। आप ये नोट्स बना लीजिएगा मेरे साथ साथ, ये नोट्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करते हो या फिर आप बोर्ड के पर्पज से देखें तो वो भी आपको इसमें सब कवर हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फॉर्म इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, ये एक टॉपिक है जो हमने नहीं देखा, देखो मैं दिखाता हूँ। इसमें सपोज हमें एक दे दिया है यहाँ पे 0.15, तो ये तो आप सब लोग इजीली लिख देंगे, डेट इज 15/100। ओके, मीन्स डेसिमल को हटाते हैं तो डिवाइड बाई जितने के बाद डेसिमल होता है, सपोज डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 2 डिजिट्स हैं, दैट इज 0 0। ठीक है, मतलब 2 0 यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, जितनी डिजिट होंगी उतने 0 बन के आगे ऐड कर देते हैं सिंपली। ठीक है, इसको फिर लोएस्ट फॉर्म में कर लेंगे, 5 3 या 15, 5 2 2। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आपने बचपन में सीखा होगा, सेम नंबर से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 3/20। इस यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, शायद आप लोग को ना पता हो, एक चीज़ होता है डिजिट्स, ये बेसिक बहुत है। तो डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स होती हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई, 10 डिजिट्स, 0 को इंक्लूड करके। ठीक, ये टोटल डिजिट्स होती हैं। ठीक, इनसे मिलकर ही नंबर्स बनते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सपोज, अब मैं एक और लेता हूँ यहाँ पे 0 0 0 2 6। सपोज ये लिखा आपका है, कोई इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखेंगे, 26/1, इसके बाद कितने जीरो लगाएंगे, 5। ये लोग ये सब चीज़ें आप बचपन में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, 6th क्लास में, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 एंड देन 2 5 जा 10, वी हैव
whole zeros. Okay, so this is the fraction form of these decimals. Okay, इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बहुत निकल के, वो हमें सॉल्व आउट करना है। मैं आपको बताता हूँ उसे कैसे सॉल्व करना है। सपोज क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन इस टाइप के दिए हुए हैं, वो मैं बताता हूँ। जैसे हमें इसे लिख दिया जाए, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मतलब एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की फॉर्म में हमें इनको लिखना है, ठीक है। पी एंड क्यू को प्राइम है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ क्वेश्चन, ठीक है। आप ये मत सोचना कि छोड़ दिया सर ने, ठीक। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं, इसमें मैं आपको क्वेश्चन एक से ज़्यादा कराऊंगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है बहुत। 0.1 बार है, अगर हमें इसे सपोज लिखना सॉल्व आउट करना है कि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाइए तो कैसे करेंगे। सो यहाँ पर आप कंसीडर करिए ये x के बराबर है, x इज इक्वल टू सपोज इट x इज इक्वल टू 0.1 बार, सो इट कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 0.111 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है। हम इसके बाद इसको क्या करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। देखिए ऐसा होता है, डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं वो आप देख लो कितना है। अब एक है तो 10 से करेंगे, दो होते तो 100 से करते, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, जब 10 से मल्टीप्लाई करा, अगर आप इसे नहीं भी लिखना चाहो इस वाले स्टेप को तो कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे ही सीधे इक्वेशन बनना होते हैं, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करा 10x, तो इधर भी 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1 बार, ठीक है। इस स्टेप से आपको मैंने इसलिए लिखी थी, इसे दिखाने के लिए। पॉइंट के बाद ये जब उठ के जाएगा तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, और बाद में 111 चल रहा है तो पॉइंट में 1 बार, ठीक है। सो 1.1 बार हो गया, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख देता हूँ, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके। आप किसी को भी माइनस कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो उसको आप माइनस जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1 बार माइनस 0.1 बार, ओके। तो सो ये बचेगा 9x बराबर इज इक्वल टू 1, ओके। 0.1 बार माइनस में जितनी भी डिजिट्स होंगी दोनों में माइनस होगी, 0 हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/9, ओके। हमें ये ही रिक्वायर्ड था, फ्रैक्शन में लिखना था, तो ये आ गया 1/9, ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आप ये मत सोचिएगा टाइम वेस्टेज है ये क्वेश्चंस करना इतना ज़्यादा, लेकिन नहीं, ये ज़रूरी है करने, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। सपोज नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 0.35 बार, 2 डिजिट का आ गया, दोनों पे बार है, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, ठीक है। तो 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.35 बार, सो इट इज इक्वल टू 100x इज इक्वल टू 35.35 बार, ओके। तो इसको हमने जो है इक्वेशन 1 कहा था, इसको इक्वेशन 2 कह दिया, ओके। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू 35.35 बार माइनस 0.35 बार, सो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 35, सो x इज इक्वल टू 35/99। तो ये जो वो फ्रैक्शन हो गया किसका, डेसिमल फॉर्म का फ्रैक्शन हो गया ये 0.35 बार का, ओके। 35/99, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक, उसमें थोड़ा सा चेंजेस हैं इसके, तो वो चेंजेस दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 3, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, नो वरीज। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू
0.163, सपोज हम लोग 3 पे बार लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद पूरे पे बार नहीं है, सिर्फ 3 पर है। तो कैसे करना है इसको, देखो पॉइंट के बाद पहले ये देखो कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिन पे बार नहीं है। 2 नंबर से यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला बार यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे स्टेप है एक, ये लिख लीजिए मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100x इज इक्वल टू 16.3 बार। मैं पूरा लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, तो आप समझ ही गए होंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर चला जाएगा, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 1, से नाम दीजिए, ठीक। सेकेंड इक्वेशन लिखिए आप। अब इस x को क्या कीजिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है टोटल, 1 2 3, सो 1000 से मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। किसको मल्टीप्लाई करना है, दिस इक्वेशन ए नाम दे दीजिए आप, कुछ भी नाम दे दीजिए, ओके। वो आप ध्यान रखिएगा, लिख दीजिएगा बोर्ड्स में अगर होता है, ऐसे मत डायरेक्ट मत लिखिएगा, थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। तो 1000 से मल्टीप्लाई करें, 1000x इज इक्वल टू 163.3 बार, ओके। सो दिस इज इक्वेशन। ऐसा हमने क्यों किया, हमें डेसिमल के बाद सेम वैल्यू लानी थी, 0.3 बार 0.3 बार, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। इसके बाद सब्ट्रैक्टिंग, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ उसको, ताकि आप समझ जाए अच्छे से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके। सो इक्वेशन 2 मतलब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, देखिए 1000x है और वो 99x, 100x है। 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू, अगेन से 163.3 बार 16.3 बार, 163.3 बार माइनस 16.3 बार, सो दिस इज द रिजल्ट, ओके। अब इसे हम माइनस जब करेंगे तो ये आ जाएगा 900x इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 147, ओके। सो x इज इक्वल टू 147/900। तो ये जो है फ्रैक्शन फॉर्म है किसकी, 0.163 बार इज इक्वल टू 147/900, ओके स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन चाहे तो आप और देख लें, इसमें मैं बता देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। x इज इक्वल टू 0.324 पे बार लगा दी, सपोज 2 डिजिट पे। तो मैंने बताया था पहले आपको, जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 10x से यहाँ पर हो जाएगा तो 3.24 बार। मैं से थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। फिर जितने पे बार है उतने से करेंगे, मतलब 100x, 100 नहीं 1000x, 3 डिजिट्स हैं, ओके। तो 324.24 बार, ओके। अब आप देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद दोनों डिजिट्स सेम आ गए, ठीक है। तो सेकेंड वाली इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो 1000 माइनस 10 हो जाएगा 990x, ओके। ये हो जाएगा 324 माइनस 3 321। पॉइंट्स के बाद का तो सोचना ही नहीं आपको, वो तो बराबर हो जाए तो माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 321/990। इसको और रिड्यूस कर सकते हैं अभी लोएस्ट फॉर्म में, जो क्या आ जाएगा 107/330, ओके। सो इट कैन बी रिटन एज 0.324 पे बार है इज इक्वल टू 107/330, ओके। सो ये जो हो गई हमारी फ्रैक्शन फॉर्म हो गई इस डेसिमल की, ओके। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपने छोटा सा टॉपिक है इर्रेशनल नंबर्स, जो मैंने अभी नहीं बताया, वो आपको बताऊंगा मैं। इर्रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स की वही सिमिलर डेफिनेशन जो हमने उसमें पढ़ी थी इरेशनल नंबर्स में, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें बस नॉट उसमें लगा देंगे। अगर आपको बोर्ड में लिखने को इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको कभी आ जाए बाई चांस 2 नंबर में, तो आप लिख देंगे नंबर्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, numbers which are not in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0, okay. So
अब देखिए इसके बाद एग्जांपल्स इसके देखिए, एग्जांपल्स से आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं पाई, पाई की जो वैल्यू आती है सॉल्व आउट करके वो आती है 3.141 एंड सो ऑन, ठीक है। ये वैल्यू आपने पढ़ी होगी, लेकिन ये वैल्यू जो होती है कहीं भी रिपीट नहीं होती, ये चलती रहती है वैल्यू। सॉल्यूशन आप डिवाइड करते रहेंगे चलती रहेगी, मतलब ये 22/7 के बराबर होता है ना, तो इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू चलती रहेगी कंटिन्यूस। सो ऐसी वैल्यू जो होती हैं, ऐसे जो डेसिमल फॉर्म है दैट इज इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इसमें और भी आता है, ये पाई हो गया, एक होता है यूलर्स नंबर, आप लोगों ने शायद कभी नाम सुना हो उसका, यूलर्स नंबर। उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू जो है 2.718 एंड सो ऑन इसके बराबर होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी ऐसी होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद एक गोल्डन रेशियो आता है, मैं उसको भी लिख देता हूँ। गोल्डन रेशियो, उसका सिंबल होता है इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। उसकी वैल्यू 1.618 एंड सो ऑन होती है, ठीक। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है वैल्यूज़ को, आप बस इतना याद रखिएगा कि रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी अपन क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सकें, तो ठीक है। तो हम लोग इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में डेसिमल फॉर्म जो है इसको नहीं लिख पाएंगे, ठीक। ओके, ये आप ये मत सोचिएगा 22/7 तो लिख दिया है, ये एक अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। एक्यूरेट वैल्यू जो है 3.1 सो ऑन आपको आती रहेगी, ओके। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा जो हमें आना ही चाहिए, और एनसीईआरटी में उस पर क्वेश्चन आया है, बोर्ड में भी क्वेश्चन उस पर आता है, वो सीख लीजिए आप। एग्जाम्पल है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नहीं आएगा थोड़ा सा, मतलब हो सकता है √7 कर दे, √5 कर दे, कुछ भी कर सकता है। सो ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान से कीजिएगा, आप क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं एक सेकंड में आता हूँ। ओके, नाउ है, ओके। सो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे अब कैसे करना है इसे। इसे मैं आपको बहुत ही कायदे से बताऊंगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए, आप कर भी लें, ठीक है। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, तो अज्यूम दैट, मैं इसे प्रॉपर्ली लिख के दिखाता हूँ तो कैसे लिख के आना है एग्जाम में आपको। अज्यूम दैट √2 इज रेशनल, इसका अपोजिट आप अज्यूम कर लीजिए कि ये रेशनल है, ठीक है। अब रेशनल हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। इसके आगे सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, बोथ द साइड्स, ओके। सो स्क्वायरिंग करेंगे तो √2 का स्क्वायर इज 2 एंड पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये तो सिंपल है। इसके बाद क्यू स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1, ओके। सो इससे हम देख सकते हैं 2 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, 2 जो है पी स्क्वायर का फैक्टर है, पी स्क्वायर मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, इधर जाएंगे तो 2 इज द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, सिमिलरली देयरफॉर 2 इज द फैक्टर ऑफ पी ऑल्सो, फैक्टर ऑफ पी ऑल्सो, जब पी स्क्वायर का फैक्टर है तो पी का फैक्टर होगा। देन इसके बाद सपोज कर लो पी जो है वो 2m के बराबर है, सपोज किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं सोचें कहाँ से आ जाएगा, वेयर m इज एन इंटीजर, m कोई एक इंटीजर है, हमने उसके बराबर कर दिया इसको, ठीक है। अब इसको स्क्वायरिंग कर दो, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग करने के बाद ये क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, ओके। पी स्क्वायर को फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 में क्या क्या लिखा था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू था पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह पे 2q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, ये सॉल्व आउट होकर हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, ओके। सो इसके आगे मैं सॉल्यूशन इधर करता हूँ। सो इससे हम देख सकते हैं इस इक्वेशन से जो मैंने अभी लिखी है, दैट 2 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर
therefore 2 is the factor of q also, ठीक है, मतलब 2 जो है वो q का फैक्टर है, 2 का ही है। अब देखिए ये हमारा इतना सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ये लिखना होगा, कंक्लूजन जो निकल के आया। सो बोथ, ये स्टेटमेंट जरूर पेपर में लिख के आइएगा। सो बोथ p एंड q आर इवन integers and they have a common factor 2। हमने दोनों में सॉल्यूशन करा था, देखिए यहाँ भी 2 आया था और पीछे उसमें p स्क्वायर वाले में 2 फैक्टर आया था, ठीक है। 2 which contradict, जो हमने माना था उसको कंट्राडिक्ट करा, कंट्राडिक्ट द फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है, which contradict the fact, sorry fact not fact, it's fact, contradict the fact that p and q have no common factor, ओके। सो ये स्टेटमेंट आप ध्यान से लिखिएगा। देयरफॉर आवर अजम्पशन, थोड़ा सा स्टेटमेंट है, आप एक बार पढ़ लेंगे याद भी हो जाएगा आपको, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √2 इज इरेशनल। ये प्रूव हो गया, इस तरीके से आपको प्रूव करना है। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, एक क्वेश्चन मैं और आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, ये भी सही क्वेश्चन है। सपोज आपको दे रखा है x इज इक्वल टू √3 माइनस √2, इससे प्रूव करना है दैट इट इज़ इरेशनल, ठीक है। तो सबसे पहले तो अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम x, हमने x लिख ही दिया ऊपर, ठीक है, x इज रेशनल नंबर, ओके। ये भी प्रूफ है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है तरीका से करने का। तो हम लोग x इज इक्वल टू √3 माइनस √2 है, इसके बाद इसको पहले तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, ओके। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर होगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी में, पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा, नहीं तो मैं बता भी देता हूँ। दैट इज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीचों बीच में, वैसे आप जो है एग्जाम में साइड में लिखिएगा, ठीक। a माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आप लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ठीक है। सो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर √3 के स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर इज 2 माइनस 2 √3 इंटू √2 इज √6, ओके। सो हेयर इसको हम जब सॉल्व आउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 2 √6, एंड देन इसको और हम सॉल्व आउट करें, 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू √6, ओके, ठीक है। आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये सिंप्लीफाई करने पर ये निकल कर आएगा, ठीक है। अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पहले हम लोग ये बात जानते ही हैं, एक्स इज रेशनल, स्टार्टिंग में हमने लिखा था, ये अज्यूम करा था, वही है एक्स इज रेशनल। एक्स रेशनल हो गया तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर आ रहा है वो भी रेशनल होगा, एक्स स्क्वायर इज रेशनल, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर रेशनल हो गया तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ये भी रेशनल हो गया, इज रेशनल, ठीक है। अब देखो जब ये रेशनल हो गया ये वाला टर्म, तो ये जिससे इक्वेट कर रहा है √6 से वो भी रेशनल हो गया इसके अकॉर्डिंग, सो √6 इज रेशनल। लेकिन हम लोग ये बात जानते हैं, यहाँ पे लिख लिया स्टेटमेंट, बट √6 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये बात हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, मैंने बताया था इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, अगर आप √6 की वैल्यू निकालेंगे तो ये चलती ही रहेगी, वैल्यू खत्म नहीं होगी, ठीक है। सो देयरफॉर वी अराइव एट कंट्राडिक्शन, ये वर्ड जरूर लिखिएगा ध्यान से, कंट्राडिक्शन हमारे बात को कंट्राडिक्ट करता है, ठीक है, अपोज करता है, कंट्राडिक्शन। सो
our supposition was wrong. Our supposition was wrong. Okay, therefore root 3 minus root 2 is an irrational number. Irrational number. ओके, सो ये प्रूफ यहाँ पर हो गया ख़त्म। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ छोटी सी आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, चलो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ छोटा सा, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। सपोज आपसे ये पूछे, मैंने आपको रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 निकालने से पहले बताया था, दो नंबर के बीच में कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मैं रेशनल की बात करूँ तो रेशनल 2 and 3 के बीच में कैसे निकालेंगे, 2 + 3/2 दैट इज़ 5/2। सो ये रेशनल नंबर हो गया 2 and 3 के बीच में। अगर हमसे ये क्या कोई रेशनल निकालो, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ भाई, ठीक है। रेशनल को वैसे क्यू से नोट करते हैं, मैंने आर से करता हूँ, कोई बात नहीं, समझाने के लिए है, ठीक है। इरेशनल नंबर अगर आ गया तो इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, रूट के अंदर, रूट दोनों नंबर को प्रोडक्ट करेंगे रूट के अंदर, ठीक है। सो रूट 6 जो होगा वो 2 and 3 के बीच में होगा। अगर आपसे सपोज कोई कह दे कि हमें एक नहीं और नंबर चाहिए ज़्यादा, तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें क्या कीजिए, रूट वैसे ही प्रोडक्ट कीजिए 2 इंटू, अब रूट 6 आया था तो रूट 6 यहाँ पे कर दीजिए, तो ये जो नंबर निकल के सॉल्व आउट होकर आएगा वो भी 2 और 3 के बीच का होगा, 2 और रूट 6 के बीच का। मतलब ये समझ लीजिए आप, मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिखता हूँ 2, उसके बाद 2 से बड़ा होगा रूट 2 इंटू रूट 6, फिर इससे बड़ा होगा रूट 6, देन इनसे बड़ा होगा 5 दैट इज 3। ओके, सो ये क्या कहते हैं, इसमें सीरीज होगी, सीक्वेंस होगी, ठीक है। ऐसे रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। मैं इसमें आपको बता देता हूँ, देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। सो जैसे हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं, वही एग्जांपल की फॉर्म में ले लेते हैं। रिप्रेजेंट, सपोज हमने ले लिया रूट 10 ऑन द नंबर लाइन। ओके, सो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करें, देखिए ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, इसे आप उससे कीजिएगा, प्रोटेक्टिव कंपास इन सब की यूज़ से, ठीक है। मैं इसे यहाँ से दिखा देता हूँ, बता देता हूँ आपको कैसे करना है। ये हमने एक नंबर लाइन ले ली, ठीक, स्ट्रेट लाइन, एंड देन एक पॉइंट चूज कीजिएगा दैट इज ओ। उसके बाद आप ये देखिए, ये रूट 10 है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सिखाऊँ पहले, रूट 10 जो है वो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। सो ये ट्रिपलेट होती है 1 3 10, ठीक है, 1 3 10 की ट्रिपलेट होती है पाइथागोरस थ्योरम में। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर या हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया 1 जो है यहाँ पे, ठीक है। सो ये फॉलो होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, हमें रूट 10 चाहिए, तो हम यहाँ पर जो है बेस पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। सो यहाँ 0 पे कंपास रख के आप लोग 3 सेलेक्ट करके स्केल से यहाँ पर कट लगा लेंगे, दैट इज एट सपोज ए पॉइंट। यहाँ पर ये कितना होगा 3, ठीक है। 3 के बाद आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कितना 1, ए पर यहाँ कंपास रखेंगे, 1 का सिलेक्ट करेंगे और यहाँ कट लगाएंगे, दैट इज 1, ठीक है। यहाँ पर ये बन जाएगा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे वैसा हो गया, मैं इसे रेस कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ 1 है, ए पर है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा लाइन टेढ़ी हो गई है तो ऐसा है, आप सीधी बनाइएगा, ठीक। तो सपोज यहाँ ये 1 है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर दीजिए आप, 0 से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप 0 पे कंपास रखेंगे यहाँ पर, सॉरी 0 पे कंपास रखेंगे यहाँ पर, और इसे सिलेक्ट कीजिए, कंपास को एक यहाँ रखिएगा, ओ सॉरी,
और दूसरी यहाँ होनी चाहिए आपकी उसके पास यहाँ पर पेंसिल जो आपकी, ठीक, उससे आप यहाँ पर एक कट लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जहाँ भी कट करेगा। ओके, सो ये तो √10 डिस्टेंस हो ही गया, 3 और 1 का स्क्वायर करके जो है 10 आएगा, इसे मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक। तो ये जो पॉइंट आएगा इसे आप पॉइंट बी सपोज कर लीजिए, तो आपकी ये दूरी जो होगी जी ओ से लेकर बी तक, ओ बी जो डिस्टेंस होगा दैट इज √10, ये √10 होगा। ओके, इसे आप सी मान लीजिए। तो इसी को आपको स्टेप्स ऑफ, हाँ ध्यान रखिए आप जब कभी ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखनी होगी, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में यही है, टेकिंग ओ एज पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड सो ऑन। इस तरीके से जो मैंने आपको बताया है उन्हीं सबको आपको पॉइंट्स की फॉर्म में स्टेप्स में लिख देना है, बस जैसे जैसे बनाते जाइए उसको स्टेप्स में लिखते जाइए, ये होता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट इज, इसके बाद एक और है, मैं चलिए वो एनसीईआरटी सॉल्व कराऊंगा तब बताऊंगा। इसके बाद हम चलते हैं, हाँ इसके बाद एक चीज़ आती है, एक नया टॉपिक की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज रेशनलाइजेशन, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है, सब टॉपिक सभी इजी हैं, आप बस समझते चलिए साथ साथ, मैं पढ़ाता चलता हूँ। रेशनलाइजेशन, सो रेशनलाइजेशन में हम लोग एग्जांपल्स लेके ही समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने ले लिया 2/√3, अब कोई क्या है रेशनलाइज करना, तो रेशनलाइज करने का सिंपल मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में जो रूट में टर्म है, रूट हटाना है डिनोमिनेटर से कैसे भी, तो कुछ नहीं करना है, इसको जो है √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दो जो डिनोमिनेटर है उससे ही, तो ये क्या हो जाएगा 2√3/3, बस यही रेशनलाइज होता है, इसे रेशनलाइजेशन बोलते हैं। सेकंड देखिए और क्वेश्चन देख लीजिए इसके ताकि समझ जाए। जैसे सपोज 5/2√2, अब आप ये मत सोचिएगा 2√2 से मल्टीप्लाई करना है, आप खाली √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, जो रूट के अंदर टर्म है बस, तो ये हो जाएगा 5√2/2 इंटू √2 का स्क्वायर इज 2, दैट इज 2 2 4, 5/4√2। नेक्स्ट इज एक और लेते हैं हम, जिससे कि हमारा है सपोज टर्म है 4√3/3√2। अब आप ये मत सोचिएगा ऊपर भी √3 उसे हटाना, उसे नहीं हटाने की जरूरत है, वो अपने आप हटेगा, इसे मल्टीप्लाई कीजिए √2/√2 से, ठीक है। सो ये हो जाएगा 4√6/3 ओके, इसे और मिनिमाइज भी कर सकते हैं आप, 2 2 4 एंड 2 3 6, ओके, 2√3/6, 2√6/3। ओके, अब देखिए एक और मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, वो और समझिए, वो इंपॉर्टेंट है। ये तो सिंपल था बिल्कुल, अगर सपोज करो यहाँ पर हमारा ऐसा टर्म आता है √5+1, अब आपको अगर √5 से मल्टीप्लाई करो तो नहीं, आप मल्टीप्लाई करना है √5 - 1, जो अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, नेगेटिव में होगा तो माइनस का पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है, अपोजिट साइन का यूज़ करेंगे, ठीक। सो ये सॉल्व आउट होके आ जाएगा √5 - 1 ए प्लस, देखो ए यहाँ एक आइडेंटिटी आई, फिर आइडेंटिटी आ गई, a+b a - b मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू, आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b², ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक, मैं पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा उसको पढ़ाऊंगा अभी, ठीक। तो सो a² क्या हो गया आपका 5 - b² 1, ठीक है। सो ये हो गया √5 - 1/4, ओके। सो इन दिस वे रेशनलाइजेशन कैन बी डन। इसके बाद हम लोग आते हैं आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे, ठीक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, मैं आपको देखो दिखा दूँ, मैंने टॉपिक्स जो थे स्टार्टिंग में लिखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये होता टॉपिक्स, यस। सो टॉपिक्स हमारा लास्ट है, इरेशनल नंबर्स हो गया, ओके। इसके बाद हमारा रिप्रेजेंटेशन हमने कर लिया, बस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट रह गया है फॉर रियल नंबर्स। सो इससे पहले मैं एक छोटी सी बात मैं लिख देता हूँ और रियल नंबर्स, देखिए अगर हमें सपोज कोई क्या रियल नंबर्स क्या होता है, तो सिंपली इतना बता देना है, रियल नंबर्स इज इक्वल टू रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, बस इतना सा याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये एक अच्छा टॉपिक है, इससे एग्जाम्स कंपटीशंस में भी क्वेश्चन आता है छोटे लेवल पे, ठीक है। हो सकता है आपके लेवल पे ना आए इतना, 9th में 8th तक ही आए, लेकिन फिर भी आने चाहिए,
क्योंकि इसका यूज़ होता है। तो इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहला है प्रोडक्ट रूल। अब आप ये मत सोचिएगा रूल सुन के डर जाइए, डरना नहीं है, छोटा सा है, प्रोडक्ट रूल या प्रोडक्ट लॉ भी बोलते हैं इसको। सो ये होता है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम इंटू एन। मतलब अगर बेस सेम है तो पावर्स मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए बीच प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट करेंगे, बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देंगे, एम प्लस एन, सॉरी मिस्टेक, एम प्लस एन, ठीक है, पावर्स जो है ऐड हो जाएंगे। ओके, मैं रेस करके दोबारा लिख दूँ, नहीं तो कर ए की पावर एम प्लस एन। ओके, सेकेंड इज quotient लॉ। quotient लॉ, ओके। सो quotient लॉ क्या कहता है, अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, ए की पावर एम माइनस एन। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड इज ए की पावर एन की पावर एन की पावर एक्स वाई जेड कुछ भी हो तो उन सभी पावर्स को हम लोग बस मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से, ठीक है, सारी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी जितनी हो। ओके, फोर्थ, इसे आप नोट डाउन कीजिएगा, ये बहुत ही आपको कंक्लूजन में दे रहा हूँ सभी चीज़ों का। ए इंटू बी की पावर एम विच इज इक्वल टू ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बोथ पे पावर इसमें एम है कॉमन, तो सब में ही एम आएगी। ओके, मतलब सेम पावर आएगी, ए एंड बी कोई भी नंबर्स हैं। ओके, ए अपॉन बी रेज टू दी पावर एम, सो दिस कैन बी रिटन एज ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम। एंड द फिफ्थ वन इज ए रेज टू दी पावर जीरो। किसी की भी नंबर की पावर अगर जीरो हो जाए तो वो वन होता है, बस एक शर्त है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब कोई ऐसा कह लो कि जीरो की पावर जीरो बन जाए तो नहीं, वो जीरो ही रहेगा, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है आपसे कभी पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपसे लिखा हुआ ए की पावर एन माइनस एन तो ये हो जाता है वन अपॉन ए की पावर एन। ओके, वी हैव फ्यू मोर। अगर सपोज आपसे लिखते हैं रूट ए तो इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर हाफ। अगर सपोज यही लिखते हैं, कोई कहे क्यूब रूट ऑफ ए, सो ए की पावर 1/3। अगर सपोज कोई लिखते हैं फोर्थ रूट ऑफ ए, सो ए की पावर 1/4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। एक और है छोटा सा, मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप उसे नोट कर लीजिएगा बस, ठीक है। माइनस ए की पावर एम अगर लिखा हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -1 इंटू ए की पावर एम। ओके, तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। मैं इस पर आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखिए, सपोज आपका क्वेश्चन है, मैं थोड़ा लेंदी क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें सारी प्रॉपर्टीज मोस्टली यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। आप घबराइएगा नहीं उसे देख के। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ। यहाँ पर एक चीज़ होती है बोर्ड मास रूल, ये आपने 5th या 6th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसमें ब्रैकेट ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस सीक्वेंस में ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं पहले डिवाइड है इसमें, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ है पहले सबसे, तो हम लोग ब्रैकेट ऑफ कर लेंगे, -2 की पावर -5 सिंपली, ठीक। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई, डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और इसकी जो है ये वैल्यू जो है ये हो जाएंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। ओके, इसके बाद -2 की पावर -5, इसे ऐसा ही ध्यान दीजिए। इसमें देखिए 3 की पावर -6। अब देखिए बेस में पावर क्या है, 7 है, तो मैंने क्या बताया था, जब बेस सेम हो तो पावर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाता है डिवाइड में, ठीक है, इनटू 2 की पावर -5। ऐसे ही यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा तो -3। ओके, सो ये हो जाएगा -2 रेज टू दी पावर -5 इंटू 3 रेज टू दी पावर 7 6 13 एंड देन 2 रेज टू दी पावर -5 प्लस 3 दैट इज -2। ओके, इसके बाद देखो -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर -5, ओके, एंड 2 की पावर 5 ये मैंने लास्ट प्रॉपर्टी जो बताई थी वो वाली है यहाँ पे लगाई, और इसको ऐसा ही रहने दो इनको। सो इट कैन बी रिटन इन -1 की पावर -5 इज -1 सिंपली, ओके, इसको तो अलग रहने दो, एंड देन 2 की पावर -5 एंड 2 की पावर
इसको हम लोग लिख देंगे एक साथ। अब देखो मल्टीप्लाइंग पावर्स क्या होती है, ऐड होती हैं। ओके, मैं आपके लिए थोड़ा डिटेल में यहाँ पे चला जा रहा हूँ लिखने के, नहीं तो ये एक स्टेप हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, -1 इंटू 2 की पावर हो गया -7 इंटू 3 की पावर -13। सो इट कैन बी रिटेन एज -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई में हम लोग को डिवाइड हो गए तो 2 की पावर -7 इंटू 3 की पावर -13। ओके, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कोई गलती तो नहीं है इसमें। ओके, यस इट्स करेक्ट। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल मिस्टेक कहीं पर हो जाती है तो आप उससे खुद भी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, घबराइएगा मत उससे। मेन चीज़ है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स तो फिर सॉल्व हो ही जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन हो गया। ये आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सिर्फ इतना ही है। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जिनको मैं लिख दूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सिंपल से। जैसे कि सबसे पहला आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? अब देखिए, परफेक्ट नंबर वो नंबर्स होते हैं, ये पहला ले लीजिए आप, नंबरिंग कर लेते हैं। ऐसे नंबर्स एग्जांपल लीजिए, जैसे 6 है तो 6 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3, दीज आर फैक्टर्स। अगर इसके फैक्टर्स का सम किया जाए 1 + 2 + 3 तो वही नंबर आ जाए। ठीक है, 6 था देखिए यहाँ भी, और यहाँ भी 6 आ गया। तो अगर फैक्टर्स का सम सेम नंबर आता है तो वो नंबर्स क्या परफेक्ट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, सेकेंड एमिकेबल नंबर्स। एमिकेबल नंबर्स, एमिकेबल नंबर्स जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं 220 एंड 284। ये सपोज दो नंबर्स हैं। ठीक है, ये दोनों एमिकेबल नंबर्स हैं। कैसे? इनके फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स जो हो गए उनका सम करो। जैसे यहाँ पे फैक्टर तो आप कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके, मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ये फैक्टर्स होंगे इसके। आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं सॉल्व आउट करके अगर आप चाहें तो। 22 + 44 + 55 + 110। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स होंगे। अगर इनका सबका सम करें तो ये निकल के यहाँ पर 284 आता है। सिमिलरली 284 के अगर फैक्टर्स करें और उसका सम करें 1 + 71 + 142, सो इन फैक्टर्स का भी सम कंक्लूड हो गया 220 आता है। सो वी कैन सी कि यहाँ पर देखिए 220 फैक्टर्स का सम 284 आ गया और 284 फैक्टर्स का सम 220 आ गया। ठीक, तो दोनों एक दूसरे के नंबर्स के बराबर आ गया। तो ऐसे नंबर्स एमिकेबल नंबर्स कहलाते हैं। एंड द थर्ड वन इज पैलिंड्रोम नंबर्स। पैलिंड्रोम नंबर्स, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आपके 11th के न्यू के एंट्रेंस में भी आता है इस पे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग, जैसे एग्जांपल मैं लिख देता हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ उसे। ऐसे नंबर्स जिनको अगर जैसे हम लोग पहले लिखा देन उसको रीअरेंज करा, मतलब रिवर्स फॉर्म में लिखा, तो वो सेम हो। जैसे पढ़ें, अगर हम इसको पढ़ें तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, चाहे आप इधर से पढ़िए 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ऐसे मैं छोटा सा नंबर लेता हूँ, सपोज 1 2 1, सो 1 2 1 1 2 1। ठीक है, किसी भी साइड से पढ़ा जाए उसको सेम पढ़ने में आए, सो उसको पैलिंड्रोम नंबर्स बोलते हैं। अगर हम जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर नेम है सपोज कोई किसी का अफीफ़ा, सो इट कैन बी रीड एज AFIFA AFIFA, चाहे आप इधर से पढ़ें चाहे आप इधर से पढ़ें। ठीक है, सो सेम, सो इट इज पैलिंड्रोम नेम। ओके, किसी से कहिएगा नहीं ये नेम पैलिंड्रोम है, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए है। ठीक है, सो ये पैलिंड्रोम नंबर्स हो गया। इसके बाद एक और आता है, वो मैं और आपको बताता हूँ, फोर्थ वन, डेट इज फिबोनाची नंबर्स। इट इज फिबोनाची नंबर। ओके, ये एक सब्जेक्ट होता है जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे पढ़ते हैं, डेट इज
पाइथन, उसमें फाइबोनाची सीरीज पढ़ाई जाती है, ठीक है, वही है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट टू नंबर्स वो 0 1 होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर इन दो का सम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 0 + 1 1 + 1 2 एंड सो ऑन, इस तरीके इन दो का सम प्रीवियस नंबर के साथ जोड़ के उसको सम लिख दिया जाता है। 2 + 3 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से इसको लिखेंगे। 5 के बाद 8 आएगा, सो ऑन, इस तरीके से आता जाएगा, ठीक है। सो दिस नंबर इज सीरीज इज कॉल्ड फाइबोनाची नंबर्स, ओके, फाइबोनाची नंबर और फाइबोनाची सीरीज, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा इस चैप्टर में मैंने आपको जो टॉपिक्स लिखाए थे वो सारे ही कवर हो गए, ओके। मैं एक बार यस, सो ये टॉपिक हमारा, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड हो गया। अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूँ छोटी सी, जिससे कि पहले हम स्टार्टिंग में चलते हैं। देखिए हमने ये भी कवर कर लिया। अब देखिए दिस इज़ ऑल अबाउट नेचुरल नंबर्स, और इसके जो एक्सरसाइज हैं एनसीईआरटी की वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने सॉल्व कर दूंगा। वहाँ से आप लोग एक्सरसाइजेज अपना ऑल क्वेश्चंस में सॉल्व करूँगा, सभी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली एंड यू कैन सॉल्व आउट बाय ओन सेल्फ ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।